Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, today I am going to discuss all about the Kabaddi. In this video, I am going to discuss with you first introduction of the Kabaddi and then different name of Kabaddi in different region and states of India and other countries as well. What is the desirable ground size? Then measurements of field of play, then age criteria and the weight criteria, then terminology of the field of play, what are the equipments of the kabaddi, then the terminology of the game, then rules and regulation, then we will discuss official and the technical, what are the use of cards and duties of the official. So friends, एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल for new updates and more you will get more information. So friends, let's begin. So here introduction, first part of this video. Kabaddi is a contact team sports played between two teams of 7 players. The objective of the game is to single player on offense, referred to as a raider, जिसको हम रेडर कहते हैं, जो प्लेयर रेड करने के लिए अपोनेंट के हाफ में जाता है. To run into the opposition team half of a court, touch out as many of their defenders as possible and return to their own half of the court, all without being tackled by the defenders and in a single breath. It is popular in the Indian subcontinent and other surrounding Asian countries. Although accounts of Kabaddi appear in the histories of ancient India, the game was popularized as a competitive sport in the 20th century. It is the national sports of Bangladesh. It is the state game of the Indian states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Punjab, Telangana, and Uttar Pradesh. Okay, friends. So here, what are the different names in different part of the Indian subcontinents, such as Kabaddi or Chudugudu in Andhra Pradesh and Telangana, Kabaddi in Maharashtra, Karnataka and Kerala, Kabaddi or Hadudu in West Bengal and Bangladesh, Bhavatik in Maldives, Kudu or Kawadi in the Punjab region, Hututu in Western India, Hududu in the Eastern India, Charakudu in South India, Kabardi in Nepal, and Kapadi or Sadugudu in Tamil Nadu. So friends, ये different नाम है different states of India as well as नेपाल और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, मालदीव्स हो गया. ओके फ्रेंड्स, सो हेयर एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, आपको कमेंट में बताना है कि द प्रो कबड्डी लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ये प्रो कबड्डी लीग जो कि बहुत ही फेमस है, इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये किस साल स्टार्ट हुआ था इंडिया में. ओके, नाउ द गेम ऑफ कबड्डी इज गवर्न्ड एंड प्लेड अंडर द रूल्स ऑफ IKF, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है IKF. और उसके बाद है द डिजायरेबल ग्राउंड साइज शुड बी 20 into 20 मीटर बट नॉट लेस देन 17 into 18 मीटर, वेयर 17 मीटर इज वर्टिकल, जो कि वर्टिकल लाइन होगा आपका. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो कबड्डी का जो गवर्न बॉडी है वो क्या है, IKF, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया. और जो डिजायरेबल ग्राउंड साइज जो है वो 20 into 20 मीटर का, ये मतलब कि सबसे बेस्ट है. अगर ना हो तो 17 into 18 17 into 18 मीटर का भी चल जाएगा. ठीक है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए ना. कुछ इस तरीके का है ना, कबड्डी का जो कोर्ट होता है इस तरीके का होता है, देख सकते हैं, फील्ड ऑफ प्ले, और इसका मेजरमेंट्स भी आपको डिटेल में मैं बता दूंगा कि वीमेंस और मेंस के लिए जो ओपन होता है उसके लिए क्या उसका लेंथ और ब्रेथ होता है, सब
जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपका ये सेंटर में जो है क्या मिड लाइन है, उसके बाद बक लाइन होता है, उसके पहले फिर बोनस लाइन होता है और एंड लाइन। एंड लाइन और बक लाइन के बीच में जो होता है वो बोनस लाइन होता है। और उसके बाद आपका ना लॉबी होता है, ये लॉबी है ना कब यूज़ होता है, कब है ना रेडर से यूज़ कर सकता है, ये मैं आपको बीच में बताऊंगा। ये जो मैं आपको यहाँ पे कोड दिखा रहा हूँ ये मेंस के लिए होता है, ये मेंस का पूरा मेजरमेंट है, ठीक है। ये 13 × 10 मीटर का ये कोड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ जो वो 13 मीटर का है और उसका विड्थ जो है 10 मीटर का है, ठीक है। और इसकी लॉबी जो होती है वो 13 × 1 मीटर का होता है, ठीक है। नाउ मेन एंड जूनियर बॉयज का जो ग्राउंड सॉरी कोर्ट का जो डायमेंशन होता है वो 13 × 10 मीटर्स का होता है, ठीक है। वीमेन एंड जूनियर गर्ल्स का जो होता है उसका डायमेंशन जो होता है वो 12 × 8 मीटर का होता है। और सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स का जो होता है वो 11 मीटर × 8 मीटर्स का होता है। ये आपको ये याद रखना है, ये कभी भी सवाल पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में या फिर किसी फिजिकल एजुकेशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एज क्राइटेरिया क्या क्या होता है और उसके साथ साथ जो वेट का भी जो क्राइटेरिया या कैटेगरीज कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसमें मैंने नोट किया है कि जो सीनियर मेन एंड वीमेन का जो होता है वो ओपन होता है, एज का कोई उसमें कोई मसला नहीं रहता है, ठीक है। बट वेट जो होता है वो मेन का जो वेट होगा वो 85 kg का होगा और वीमेंस का जो होगा वो 75 kg का होगा रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स का तो 20 ईयर्स और बिलो ऑन द लास्ट डेट ऑफ द इवेंट, ठीक है। 20 ईयर्स और उसके नीचे जो मतलब कि जिस दिन जो लास्ट डेट ऑफ इवेंट का होगा उस तक भी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो प्ले कर सकता है। बट वेट का अगर देखा जाए तो वेट कैटेगरी में होता है 70 kg बॉयज़ के लिए और 65 kg गर्ल्स के लिए होता है रिस्पेक्टिवली, ओके। सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स 16 ईयर्स और बिलो ऑन द लास्ट डेट ऑफ द इवेंट। अगर वेट की बात देखी जाए तो 55 kg बॉयज़ के लिए होता है और 50 kg गर्ल्स के लिए होता है। तो ये आपका एज क्राइटेरिया और वेट क्राइटेरिया के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले। जो मैंने अभी आपको जो कोड दिखाया है वही आपका ना फील्ड ऑफ प्ले होता है। उसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, तो सबसे पहले इसमें दिख रखा है हाफ लाइन, इसको आप सेंटर लाइन भी कहते हैं। तो हाफ लाइन क्या होता है, ईच हाफ ऑफ द प्ले फील्ड डिवाइडेड बाय द मिड लाइन इज नोन एज हाफ लाइन, इसको हाफ लाइन कहते हैं। जो कोड को दो पार्ट में डिवाइड करता है वो मिड लाइन होता है, सेंटर लाइन होता है, उसको हाफ लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है बक लाइन, द फर्स्ट पैरेलल लाइन फ्रॉम मिड लाइन। जो हमारा हाफ लाइन होता है जो सेंटर लाइन होता है उसके पैरेलल जो पहला लाइन होता है टुवर्ड्स एंड लाइन की तरफ, in each half is called as buck line and measurement is 3.75 meter from midline for men and junior boys and junior boys का भी 3.75 मीटर होता है and 3 meter in case of women and junior girls सब junior boys and girls। 3 मीटर जो होता है वो men women और junior girls सब junior boys and girls के लिए होता है, ठीक है। और मेन और जूनियर बॉयज के लिए क्या होता है 3.75 मीटर की दूरी पे होता है आपका बक लाइन। नाउ बोनस लाइन क्या होता है, द लाइन पैरेलल टू बक लाइन टुवर्ड्स एंड लाइन इन ईच हाफ इज नोन एज बोनस लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन बोनस लाइन एंड बक लाइन विल बी 1 मीटर। दोनों की जो दूरी होती है बक लाइन की और बोनस लाइन की वो 1 मीटर की होती है ना। क्रॉसिंग ऑफ बोनस लाइन क्या होता है, raider is to said to have crossed the bonus line when raider come to contact with the ground between the end line and the bonus line। जो end line जो होता है और उससे पहले एक और लाइन होती है बोनस लाइन जो मैंने ऊपर बताया है जो कि बक लाइन और एंड लाइन के जो बीच में होती है उसे क्रॉस करना होता है रेडर को, जिससे कि उसे डू एंड डाई का मसला नहीं आता है। डू एंड डाई जब होता है जब दो रेड इम्पिटी हो जाते हैं वो बोनस लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं,
ठीक है। तो क्रॉसिंग ऑफ बोनस लाइन जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे करने से पॉइंट्स मिलते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आपको 2 चांस, तो एमपीटी आपकी जा सकती है, बट तीसरा जो होता है वो डू एंड डाई वाला फिर मसला आ जाता है। तो ये आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ फील्ड ऑफ प्ले था। फील्ड ऑफ प्ले के जितने भी टर्मिनोलॉजी होते हैं, हाफ लाइन, बक लाइन, बोनस लाइन, क्रॉसिंग ऑफ बोनस लाइन क्या होता है, ठीक है, ये वाइवा में पूछा जाता है ना। इक्विपमेंट्स ऑफ कबड्डी गेम, जो कबड्डी गेम है उसके इक्विपमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले ऊपर एक नोट्स ये है कि कबड्डी डज नॉट नीड एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स बट वी कैन यूज मेनी मटेरियल्स फॉर सेफ्टी पर्पज एंड फॉर परफेक्शन इन गेम। कोई खास इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, अगर जो गांव देहात में जो खेलते हैं वहाँ मिट्टी पे खेला जाता है, बट नाउ आजकल ये मॉडर्न बहुत से मॉडर्न टेक्निक्स या टूल्स है जो यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल तो आर्टिफिशियल इसके कोड बनने शुरू हो गए हैं, तो इसमें ना स्लिप होने का मसला होता है। तो इसमें क्या है, सम इक्विपमेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नी कैप होता है जो कि कॉटन या प्लास्टिक का आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं नी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंकल प्रोटेक्शन गार्ड होता है, ठीक है, जो कॉटन प्लास्टिक के होते हैं। एल्बो प्रोटेक्शन गार्ड होता है, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स एंड शूज़ फॉर सिंथेटिक मेट, जो सिंथेटिक मेट है उसके लिए ना आप शूज़ यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट सपोर्ट होता है, पाम सपोर्ट होता है, और एक जो होता है ग्रिप बैंडेज होता है। ओके, तो ये आपके कुछ इक्विपमेंट्स है जो आप है ना यूज़ कर सकते हैं फॉर योर सेफ्टी पर्पस और परफेक्शन, गेम में परफेक्शन लाने के लिए ना। टर्मिनोलॉजी ऑफ गेम, जो गेम है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कांट। कांट क्या होता है, द रिपीटेड एंड द क्लियर चैटिंग ऑफ अप्रूव्ड वर्ड कबड्डी। जो कबड्डी कबड्डी जो हम जो चैट करते हैं या बोलते हैं या दोहराते हैं बार बार, कह सकते हैं रिपीटिशन जो होता है उसको कांट कहते हैं। कब, वाइल डूरिंग विल बी कॉल एज अ कांट, मतलब जब हम चैट करते हुए अपोनेंट के कोर्ट में जाते हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कांट कहते हैं। रेड क्या होता है, when the raider enters the opponent's court or half with kant to attack, it is known as raid। मतलब ये है यहाँ पे जो रेडर होता है, जो उस प्रक्रिया को, जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपोनेंट के कोर्ट में जाता है तो उसे रेड कहते हैं, ठीक है। बट जो जाएगा प्लेयर उसे हम क्या कहेंगे, रेडर कहेंगे। तो नेक्स्ट में क्या है, रेडर, द प्लेयर हु इंटर्स इनटू अपोनेंट्स हाफ विद कांट इज नोन एज रेडर, ठीक है। जो रेडर जाएगा उस करने के लिए उसे क्या कहेंगे, रेड कहेंगे, जो आपका सेकेंड पॉइंट है, रेड, ठीक है। रेड कौन करेगा, रेडर करेगा। तो रेडर क्या होता है, द प्लेयर्स हु इंटर्स इनटू अपोनेंट्स हाफ विद कांट इज नोन एज रेडर। नाउ डिफेंडर क्या होता है, एवरी प्लेयर इन हुज हाफ द रेड इज बिंग मेड, मतलब जिसके हाफ में रेड किया जाएगा तो उसमें जितने भी प्लेयर होंगे ना वो सब क्या होंगे, आपके डिफेंडर होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफेंडर कहेंगे, ठीक है। नाउ टू पुट आउट अ डिफेंडर, if a defender touch if a raider touches a defender without breaking of rules of play, or if any body parts of a defender touch any part of the body of the raider, then the raider touches his own half with the can't, the defender is said to be out। मतलब जो रेडर जाएगा रेड करने के लिए अपन के कोर्ट में और किसी भी डिफेंडर को टच कर दिया, ठीक है, टच करने के बाद उसे कान के थ्रू, मतलब कबड्डी कबड्डी रिपीट करते हुए अगर सेफली अपने कोर्ट में अगर वो आ जाता है, तो जो भी डिफेंडर की बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट को टच किया हो, कुछ भी टच हो गया उस डिफेंडर का होना चाहिए, प्लेयर का, तो वो क्या है, वो आउट हो जाएगा। मतलब क्या, वो और वो टू पुट आउट डिफेंडर, मतलब डिफेंडर जो भी होगा उसमें से एक दो जितने भी टच करेगा वो गेम से आउट हो जाएगा, ठीक है। ना कैच, कैच क्या होता है, इफ द डिफेंडर और डिफेंडर्स, ये जो अभी मैंने आपसे बताया है टू पुट आउट अ डिफेंडर, इसका अपोजिट आप इसे मान लीजिए कैच। इफ द डिफेंडर और डिफेंडर्स मतलब एक या एक से ज्यादा डिफेंडर होल्ड द रेडर विदाउट ब्रेक रूल्स ऑफ प्ले एंड कीप द रेडर इन देयर हाफ एंड do not allow him to reach his own half until he lost his count or the referee umpire blows the whistle
और 30 seconds of the raid are over is known as holding the raider or catch। ठीक है, जब रेडर रेड करने के लिए अपोनेंट के कोर्ट में जाएगा और डिफेंडर सब ने अगर उसे पकड़ लिया बिना किसी रूल्स को ब्रेक किए हुए और 30 सेकेंड अगर ओवर हो जाता है तो फिर अंपायर या रेफरी क्या करेगा, विसिल बजाएगा और वो रेडर क्या होगा, कैच हो जाएगा, मतलब कि वो आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड वन, टू रीच सेफली। इफ द रेडर टचेस हिज ऑन हाफ व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम रेड with any part of the body through the midline without break of rules with can't and within 30 seconds he is said to have reached his own half safely and raid is over। मतलब जब रेडर रेड करने के लिए जाएगा अपोनेंट के कोर्ट में तो उसे वापस भी आना होता है विद इन 30 सेकेंड्स, बिना रूल्स को ब्रेक किए हुए अगर वो आ जाता है अपने कोर्ट में रेड करने के बाद तो उसे हम क्या कहेंगे, टू रीच सेफली, मतलब कि वो वापस आ गया, मतलब वो अभी अलाइव है। ठीक रहता है ना कि एक होता है जैसे हम जब गाँव देहात में खेला करते तो ये कहते थे कि हाँ नहीं ये मर गया ये जिंदा है, मर गया ये जिंदा, मतलब कि ड्यूरिंग द गेम जो होता है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि नहीं ये जिंदा ये मर गया, तो रीच सेफली मतलब कि वो मतलब वापस आ गया, अभी वो गेम में रहेगा, अपनी टीम अपने कोर्ट की तरफ से वो खेलेगा। ठीक है, नाउ टैग। टैग क्या होता है, इसको हम दूसरे वर्ड में टच भी कहते हैं। व्हेन द रेडर टचेस द डिफेंडर और डिफेंडर्स by any part of his body or even the clothing, shoes or any other outfit is called as a touch या tag। ठीक है, जब रेडर रेड करने के लिए जाता है और डिफेंडर को या डिफेंडर सबको उसके किसी भी कपड़े को, शूज को या हाथ पे या फेस पे भी अगर लग जाए, फेस पे, ठीक है, या किसी भी बॉडी पार्ट्स पे अगर टच कर दे और वो वापस आ जाए अपने कोर्ट में तो क्या है, वो टच होता है, वो टैग होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रगल क्या होता है, व्हेन द डिफेंडर और डिफेंडर्स कम टू कांटेक्ट विद द रेडर इट इज कॉल्ड स्ट्रगल। आफ्टर टच और स्ट्रगल द लॉबीज बिकम अ पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले। मैंने आपको बताया था कि लॉबी होती है, सबके अलग अलग डायमेंशन होते हैं लॉबी के, मेंस एंड वीमेंस का, बॉयज सब जूनियर एंड गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स का, जूनियर का। तो जब स्ट्रगल होता है मतलब कि रेडर और डिफेंडर के बीच में जब कांटेक्ट हो जाता है और डिफेंडर चाहता है कि हम रेडर को अपने ही कोर्ट में उसे 30 सेकंड तक रखें किसी भी हाल में, मतलब कि रूल्स को फॉलो करते हुए, और रेडर चाहेगा कि हम किसी भी तरीके से इनके चुंगल से कह लीजिए, चंगुल से मतलब जब वापस चले जाएं, मतलब कि रेड करके इनको टच करके किसी भी तरीके से हम बाहर अपने कोर्ट में आ जाए। उस बीच में जो स्ट्रगल जो होगा एक दूसरे मतलब स्ट्रगल जो करेंगे उसी को हम स्ट्रगल कहते हैं। और उस टाइम क्या होता है कि जो लॉबीज जो होता है वो है ना ओपन हो जाता है, उसे यूज कर सकता है रेडर उस मतलब कि है ना लॉबीज को यूज करते हुए भी वो वापस अपने कोर्ट में वो जा सकता है या आ सकता है। ठीक है, तो स्ट्रगल हो गया। नाउ इम्पीटी रेड क्या होता है, व्हेन the raider crosses the buck line of the defending team at least once during the course of a raid and reaches his half with can't without scoring or losing a point is known as empty raid। empty raid कब होता है, जब रेडर बक लाइन को क्रॉस कर देता है डिफेंडिंग टीम में एक बार, ठीक है, और वो वापस चला आता है, मतलब बिना कोई स्कोरिंग या लूजिंग पॉइंट किए हुए, तो ये एम्प्टी रेड रहता है। प्रोडक्टिव रेट क्या होता है, अ रेट इन विच अ पॉइंट इज रिकॉर्ड बाय एनी टीम विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्टिव रेट। मतलब जो भी है ना, जो भी रेट करने के लिए जाएगा रेडर और जो भी पॉइंट रिकॉर्ड करके आएगा तो प्रोडक्टिव होता है, मतलब कि 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो मिलते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्टिव रेट हो गया। इम्प्टी रेट क्या, कोई पॉइंट नहीं है, नहीं तो दिया और नहीं लिया तो क्या है, वो इम्प्टी रेट हो जाता है। परस्यूट क्या होता है, when a defender rushes into the opponent half with can't and without break of rules chasing the returning raider with a view to touch tag is called a pursuit। ठीक, डिफेंडर्स रश करता है अपोनेंट हाफ में कान के साथ बिना कोई रूल्स को ब्रेक किए हुए, और वो चाहता है कि हम टच करके वापस चले जाएं अपने कोर्ट में,
तो उसको क्या कहते हैं, परस्यूट कहते हैं। सुपर कैच क्या होता है, इफ अ रेडर इज कॉट और सेल्फ आउट या डिक्लेयर आउट व्हेन द व्हेन देयर आर यहाँ पे देर आर होगा, व्हेन देयर आर 3 और 4 डिफेंडर्स आर डिफेंडिंग इज कॉल्ड एज सुपर कैच। जब 3 से 4 जब डिफेंडर होते हैं और वहाँ पे रेडर आउट हो जाता है या सेल्फ आउट हो जाते हैं या डिक्लेयर आउट कर देते हैं तो उसको सुपर कैच कहते हैं। ओके, नाउ डू और डाई, द थर्ड रेड आफ्टर 2 empty raid by a side is called as do or die। जब 2 रेड empty हो जाता है तो तीसरा रेड करने के लिए जब वो प्लेयर जब जाएगा तो उसका वो डू और डाई का मतलब डू और डाई वाला मसला होगा, या तो मरेगा या तो मार के आएगा, या तो पॉइंट अपोनेंट वाले को देगा या फिर अपोनेंट वाले को टच करके खुद अपने टीम के लिए पॉइंट लेकर आएगा। तो ये डू और डाई टर्मिनोलॉजी है जो 2 इम्पीटी रेड करते हैं उसके लिए। ऑल आउट, व्हेन अ टीम मैनेज टू पुट the entire opponent team out and none of the opponent player are entitled to receive raid, then that team score all out। ऑल आउट मतलब कि अपोनेंट मान लीजिए कि ए और बी है और बी टीम का हर एक प्लेयर आउट हो गया, आपको एक प्लेयर बचा ही नहीं हुआ कि है ना ए वाली टीम जाए और रेड करे और उस डिफेंडर उस रेड को रिसीव करे। जब नहीं कोई एक भी प्लेयर बचेगा तो वो टीम ऑल आउट हो जाएगी। जब ऑल आउट हो जाता है तो नीचे क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। 2 extra points for all out team will be awarded in addition to the points scored in the raid। ठीक है, जब प्लेयर ऑल आउट हो जाते हैं तो उसके अपोनेंट टीम को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑल आउट जब टीम हो जाती है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया जाता है अपोनेंट टीम को उसके स्कोर में ऐड करने के लिए ना। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले जितने भी थे कि आपका है ना टर्मिनोलॉजी ऑफ कबड्डी था, कैच क्या होता है, रिसेप्ली, टैग, स्ट्रगल, इनपीटी रेड, प्रोडक्टिव रेड किसे कहते हैं, परस्यूट, सुपर कैच, डू और डाई क्या होता है, ऑल आउट क्या होता है। और जब ऑल आउट टीम हो जाती है तो जो टीम ऑल आउट करती है तो उसको है ना पॉइंट्स कितने दिए जाते हैं ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी, जो हम कबड्डी गेम के बारे में बात कर रहे हैं उसके रूल्स क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं, पहले क्या होता है फिर उसके बाद क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है रूल्स, टॉस होता है। टॉस क्यों होता है भाई, चॉइस टू रेड और हाफ ऑफ द कोर्ट, कि आप रेड करेंगे या कौन सा कोर्ट आपको, कौन सा हाफ कोर्ट आपको चाहिए। ठीक है, ये डिसाइड होता है टॉस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन सेकेंड हाफ टाइम साइड चेंज ऑटोमेटिकली, ये भी एक रूल है कि जब आप अगर किसी एक टीम ने अगर कोर्ट सॉरी अपना कोर्ट हाफ कोर्ट अपना डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट हाफ टाइम के बाद खुद ब खुद वो चेंज हो जाता है। सेम प्लेयर ऑल्सो एंड द गेम इन द लास्ट हाफ। ठीक है, अ प्लेयर इज आउट इफ एनी बॉडी पार्ट्स आउट फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट के बाहर अगर अगर पैर चला जाता है या हाथ चला जाता है, ठीक है, तो वो प्लेयर आउट कहलाता है। नो विसिल फॉर द प्लेयर इफ प्लेयर आउट फ्रॉम द कोर्ट, कोई प्लेयर से बाहर चला जाता है उसके लिए कोई विसिल नहीं होता है। इफ द डिफेंडर होल्ड द रेडर, डिफेंडर विल बी आउट इफ दे होल्ड द रेडर फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, डिफेंडर अगर रेडर को बाहर से अगर वो कर रहा है तो डिफेंडर यहाँ पे क्या है, बाहर हो जाएगा। ड्यूरिंग स्ट्रगल टाइम अ प्लेयर कैन यूज लॉबी एरिया, दैट इज जो होता है मेंस के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ 30x1 मीटर का होता है और वीमेंस के लिए होता है 12x1 और सब सॉरी जूनियर का जो होता है वो 12x1 का। ओके, तो सबके अलग अलग लॉबी होते हैं, मेंस के लिए अलग होता है और वीमेंस के लिए अलग होता है, जूनियर के लिए भी अलग होता है। देयर मस्ट टू क्रॉस बक लाइन ड्यूरिंग रेड बाय रेडर, इफ डिफेंडर टच द रेडर नो नीड टू क्रॉस द बक लाइन। इसका मतलब ये है कि रेडर को बक लाइन क्रॉस करना होता है रेड के समय। अगर हाँ अगर डिफेंडर ने टच कर दिया या उसने डिफेंडर को ही टच कर दिया तो उस वक्त अब वो बक लाइन क्रॉस नहीं करेगा। अगर नहीं टच करता है तो फिर बक लाइन क्रॉस करना जरूरी है, नहीं तो फिर एक खाली जाएगा, फिर 2 खाली जाएगा, फिर तीसरे में क्या है डू और डाई का मसला आ जाएगा। फिर ना बिफोर एंटरिंग विद कांट इफ दे फेल टू रीड चैन
read या chant, then raider return back immediately and point will be given to the opponent. मतलब अंदर जाने से पहले अगर उसने कान नहीं रीड किया, मतलब कबड्डी कबड्डी नहीं बोले, वो अंदर चला गया, तब उसे क्या है, उसे खुद ब खुद बाहर आना पड़ेगा। जब बाहर आएगा तो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है जो क्या है अपोनेंट टीम को दे दिया जाएगा। ओके, नॉट मोर देन वन रेडर इंटर इन अपोनेंट हाफ ड्यूरिंग रेड, इफ डन देन टेक्निकल पॉइंट इज गिवन टू द अपोनेंट टीम। कभी कभी क्या होता है कि दो साइड से ना एक मतलब एक ही टीम से दो प्लेयर ना रेड करने के लिए अंदर हो जाता है अपोनेंट कोर्ट में। अब दो तो कर नहीं सकते भाई, तो क्या होता है यहाँ पे अब दोनों को वापस आना पड़ेगा और टेक्निकल पॉइंट अपोनेंट टीम को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। यहाँ पर एक टीम होनी चाहिए कि हाँ किसको जाना है किसको नहीं जाना है, किसको किस वक्त जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट मिलता है अगर दो रेडर एक साथ अगर इंटर करते हैं तो। वन रेडर कैन गो आफ्टर कमिंग डिफेंडर टीम within 5 seconds, if not the technical point to opponent team will be given। पाँच से जैसे ही है ना मतलब एक टीम का रेडर अगर रेड करके वो चला गया तो आपके मतलब कि आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है, विदिन 5 सेकंड आपको रेड करना है अपोनेंट आपके अपोनेंट टीम के को। अगर नहीं करते हैं तो टेक्निकल पॉइंट अपोनेंट टीम को दे दिया जाएगा, ठीक है। इफ अ रेडर रेड आउट ऑफ टर्न, अंपायर ऑफ रेफरी विल ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू हिज हाफ and technical point will be given to opponent team, raider will have to restart the raid। इसमें क्या है, if raider read out turn umpire और रेफरी, जिसमें ये है कि जो रेफरी है ना और या एम्पायर उसे है ना ऑर्डर देगा बैक जाने के लिए अपने हाफ में, और टेक्निकल पॉइंट किसको है अपोनेंट टीम को दे दिया जाएगा, और उससे कहा मतलब कि टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा अपोनेंट टीम को, बट उसे रीस्टार्ट रेड करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। Now, if a raider whom is caught by the defender and escape from their attempt and reaches his half safely, he will not be pursued. But if a raider touches the defender and reaches his back to his half safely, may be pursued। ठीक है, मतलब ये है कि अगर रेडर गया डिफेंडर को टच कर दिया और सेफली अपने कोर्ट में आ गया, तो यहाँ पर डिफेंडर को क्या करना पड़ेगा, वो परस्यूड हो जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा, ठीक है। Now, if a raider while in the opponent half lost his can't will be declared as out। मतलब जब रेडर रेड करने के लिए जाएगा अपोनेंट कोर्ट में या अपोनेंट के हाफ में, अगर उसने वहां पे कान को लूज कर लिया, कबड्डी 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 कहते हैं ना, अगर वो लूज कर गया तो वहां पे क्या है, वो डिक्लेयर हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, फिर वो डिक्लेयर आउट कर दिया जाएगा ना। तो फ्रेंड्स इससे पहले क्या था, ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा इसको सही से। नाउ ऑफिशियल्स या टेक्निकल, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या क्या कौन कौन से ऑफिशियल होते हैं, उनका ड्यूटीज क्या है। द मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स्ड इज 58 years फॉर AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1973 में फाउंड हुआ था, और affiliated units qualified official to officiate the matches। After attaining age of 50 years, the official has to undergo a fitness performance test conducted by AKFI once in 2 years। Okay, it is mandatory for all the technical official of IKF to possess and carry the following items। उसमें क्या क्या चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच, विसिल, वार्निंग कार्ड्स जो कि कार्ड्स होते हैं, पेन पेंसिल, लेटेस्ट IKF कबड्डी रूल्स बुक, ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब बाय द IKF। तो ये सब चीज़ें है ना आपको कैरी करना है अगर आप ऑफिशियल हैं तो, या इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं ना। ऑफिशियल कौन कौन से होते हैं, द ऑफिशियल इन कबड्डी विल बी एज फॉलोज। एक रेफरी होता है, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर, 2 लाइनमैन, 4 टेबल ऑफिशियल। ओवरऑल 12 ऑफिशियल होता है टू ऑर्गेनाइज अ मैच ऑफ कबड्डी।
ठीक है, एक कबड्डी मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए 12 ऑफिशियल की जरूरत पड़ती है। Decision of the umpire on the field will be final, but in special circumstances, the referee may give the decision in the best of the game. मतलब गेम को और प्लेयर का बिहेवियर, उसका एक्शन को देखकर है ना डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, जो भी अंपायर डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। Referee and umpire will have the power to warn, declare technical point to the opponent team of the year-end period. मतलब रेफरी और एम्पायर के अंदर नहीं पास इतनी पावर होती है कि वो कहा वार्न कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। टेक्निकल पॉइंट्स जो होते हैं वो है ना एक टीम को देकर दूसरी टीम को दे सकता है, और किस प्लेयर मतलब टीम के किस प्लेयर को जो रूल्स को फॉलो नहीं कर, डिसओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि रूल से जो खिलाफ जाएगा जिस टीम का भी प्लेयर, उसके अपोनेंट टीम को टेक्निकल पॉइंट्स अंपायर और रेफरी दे सकता है। नाउ यूज ऑफ कार्ड्स, यहाँ पे 3 कार्ड यूज होते हैं जैसे ग्रीन, येलो एंड रेड। ग्रीन कार्ड्स क्या है? इट इज अ वार्निंग कार्ड एंड इफ ग्रीन कार्ड इज शोन the next card will be a yellow card। अगर एक प्लेयर को अगर ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया तो उसको ग्रीन कार्ड नहीं बल्कि येलो कार्ड दिखाया जाएगा, और ये वार्निंग के लिए होता है। येलो कार्ड टेम्पोररी सस्पेंशन फॉर 2 minutes along with technical points to the opponent team। 2 मिनट के लिए गेम टीम से बाहर हो जाएगा, ठीक है, और टेक्निकल पॉइंट्स भी उसके अपोनेंट टीम को दे दिया जाएगा, ठीक है। ग्रीन कार्ड में कोई सस्पेंशन नहीं होता है, बस वार्न किया जाता है, बट एक बार वार्निंग दे दिया गया तो नेक्स्ट टाइम उसे येलो देगा, अगर येलो दे दिया फिर क्या है वो 2 मिनट के लिए बाहर चला जाएगा। ओके, नाउ रेड कार्ड सस्पेंशन from the match if red card is shown second time in a tournament of the same player, that player will be debarred from the tournament for rest of the matches। ठीक है, रेड कार्ड अगर किसी को मिल गया, वो भी 2 बार मिल गया, तो ये क्या है कि वो प्लेयर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। मान लो कि आप कोई टीम लेकर गए और पहला मैच खेला, आपका एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया और आप पहला मैच जीत गए, दूसरा भी जीत गए, तीसरा जीत गए, फाइनल तक पहुंच गए, तो ये भाई साहब जिनको है ना रेड कार्ड मिला ना, ये बस पहला ही मैच खेलेंगे, जो जितना देर तक खेला होगा बस उतना ही देर तक, उसके बाद नेक्स्ट मैच जितने भी होंगे आपके उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, ये पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं ना। यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल है, अलग तरह के ऑफिशियल होते हैं, जैसे कि रेफरी होता है, अंपायर होता है, लाइनमैन होता है, इनके क्या क्या है ड्यूटीज है यहाँ पे मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ड्यूटीज ऑफ रेफरी का होता है कि टेक अ टॉस, टॉस करते हैं जिससे कि मालूम चलता है कि हाँ रेड करेंगे या आप कौन सा लेंगे। फिर अनाउंस द स्कोर ऑफ ईच साइड बिफोर द लास्ट 5 minutes इज डिक्लेयर। इस पर क्या होता है, सुपरवाइज द जनरल द कंडक्ट ऑफ द होल मैच, अनाउंस द सब्स्टिट्यूशन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लेयर, announce the time each minutes of the last 5 minutes of the second half। जब सेकेंड हाफ हो जाते हैं तो सेकेंड हाफ के 5 मिनट के हर एक मिनट पे इनको क्या काम होता है, अनाउंस करना होता है कि 4 minutes लेफ्ट, 3 minutes लेफ्ट, 2 minutes लेफ्ट, 1 minutes, इस तरीके से ना। अंपायर का क्या काम होता है, ड्यूटीज क्या होती है, द अंपायर विल बी conduct the match and give decision according to the rules of play and match till the game is ended। The umpire will assist the referee in identifying all players by their chest number। Umpire will assist the referee during substitution and timeout। तो ये आपका क्या था, ये ना अंपायर साहब का जो भी ड्यूटीज है ये उसके लिए पॉइंट्स थे ना। ड्यूटीज ऑफ स्कोरर, स्कोरर का क्या काम है भाई, fill the score sheet and announce the score, make a note of the team winning toss, all the points scored by players of the players will be recorded। सर्च फॉर्म में होता है ऑल आउट पॉइंट्स स्कोर्ड शुड बी कैच्ड हॉरिजॉन्टली किया जाता है। बोनस पॉइंट्स विल बी शोन इन द स्कोर शीट बाय ट्रायंगल। टेक्निकल पॉइंट्स अवॉर्डेड बाय द रेफरी और एम्पायर शुड बी, ये सर्किल में शो होता है। टाइम आउट बाय टीम विल बी इंडिकेटेड बाय टी जो होता है हमारा उसमें ना इंडिकेट करते हैं। सुपर टैकल पॉइंट्स विल बी इंडिकेटेड बाय एक्स। नोट डाउन ऑफ टाइमिंग ऑन द स्कोर शीट ऑफ बिगनिंग, हाफ एंड एंडेड, मतलब कब स्टार्ट हुआ, हाफ कितने पे है और एंड कब हुआ, ये सब नोट करना होता है स्कोरर को।
complete the score sheet in all respects and get it duly signed by the umpire and referee. लास्ट में क्या होता है कि पूरा कंप्लीट करते हैं स्कोर शीट को और अंपायर और रेफरी से सिग्नेचर करके इन्हें सबमिट कर दिया जाता होगा हायर लेवल अथॉरिटीज के पास ना. ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट स्कोरर्स के काम है मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द प्लेयर्स हु इज आउट इन द ऑर्डर ऑफ देयर बीइंग आउट पुट आउट एंड रिव्यूड. Ensure the players who is put out are seated in the order of their being put in the sitting block. मतलब ये असिस्ट करते हैं कि जो प्लेयर बाहर गया है वो उस ऑर्डर में अपने जो सिटिंग ब्लॉक होगी वहाँ पे वो किस तरीके से बैठा हुआ ये असिस्ट करते हैं. ऑल्सो रिकॉर्ड द बोनस पॉइंट्स एंड टेक्निकल पॉइंट्स स्कोर बाय द यहाँ पे ना स्कोर होगा यहाँ पे सी लेफ्ट हो गया हुआ है ठीक है द अपोनेंट टीम इन ऑर्डर टू गेट द रेफरी और द टोटल नंबर्स ऑफ पॉइंट्स लॉस बाय द टीम. तो ये ड्यूटीज है ना असिस्टेंट स्कोरर का होता है. नाउ ड्यूटीज ऑफ द लाइनमैन लाइन अंपायर विल पॉइंट आउट टू द रेफरी और द अंपायर इफ एनी प्लेयर गोज आउट ऑफ द बाउंड्स. जो जो भी है ना मतलब जो कोर्ट है उससे बाहर कोई जाता है तो लाइन अंपायर ये ना रेफरी को क्या करेगा या अंपायर को इंडिकेट करेगा. द अंपायर विल असिस्ट द रेफरी इन आइडेंटिफाइंग आउट प्लेयर्स बाय देयर चेस्ट नंबर. Now, 4 table official to judge the overall activities of the match as well as tournament. जो 4 ऑफिशियल होते हैं वो जज करते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द मैच और टूर्नामेंट. तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल आपका